Hello students. Uh, in last lecture we discussed about colloids, type of colloids. Type of colloids. First type of colloid is classified on the basis of their physical states. And now we are going to classify our colloids on the basis of their interaction between disposed phase and dispersion medium. So our topic is classification based on interaction between disposed phase and disposed medium. Classification on the basis of disposed phase and disposed dispersion medium, right? On the basis of this interaction between, on the basis of interaction between disposed phase and dispersion medium. Okay. On the basis of interaction between disposed phase and disposed medium, there are two types of colloids. First one is called lyophilic. Lyophilic colloids. And second one is called lyophobic colloids. Lyophilic and lyophobic colloids. Lyophilic means solvent loving. Lyophilic means solvent loving. Lyophobic means solvent hating. Solvent hating. First thing. Right? Second thing, lyophilic and lyophobic is based on interaction between these two, disposed phase and dispersion medium. It means here another difference is attraction between disposed phase and dispersion medium. Attraction between disposed phase and dispersion medium. In case of lyophilic colloids, there is attraction between disposed phase and dispersion medium. But in case of lyophobic, there is no attraction between disposed phase and dispersion medium. No attraction between disposed phase and dispersion medium. Second thing, that is first solvent loving, solvent hating. Second, third point is due to attraction between disposed phase and dispersion medium, lyophilic colloids are more stable. They are more stable. Here there is no attraction between disposed phase and dispersion medium, hence our colloidal solution is not stable. Not stable, right? One more thing is stability depends upon solvation. Here this lyophilic colloids are more solvated, right? It is highly solvated. Solvated. They are not solvated. Right? Due to solvation, stability is also there. One more thing is there. In case of lyophilic colloids, once disposed phase and disposed medium separated, then it can be rearranged.
Like once if you separate disposed phase and dispersion medium from any colloidal solid, if it is lyophilic, then you can add them again to make colloidal solid. It means it is reversible in nature. Reversible in nature. It is not reversible in nature. ओके, तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसे अच्छे से. डिस्पो जो मेरा कोलोइडल सोल है, कोलोइडल सॉल्यूशन को हमने पहले क्लासिफाई किया था लास्ट लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट. व्हाट हैपन इफ डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड, डिस्पर्सन फेज इज लिक्विड. तो इस तरह से अलग अलग स्टेट में हमने स्टेट ऑफ मैटर को ध्यान में रख के करा था. तो वो एक बेसिस था. वहाँ पर दो चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट थी जिसकी स्टडी हमें पूरे चैप्टर में करनी है. पहली चीज़ है कि जब मेरा डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों को मिला रहे हैं तो मेरा कोलॉइड्स बन रहा है. पहली बात, कोलॉइड्स तो सोल तभी बनता है कोलॉइड्स जब इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं हम. ठीक है, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिलाया तो कोलॉइड्स बन गया, राइट. अगर ये मेरा लिक्विड है, ये डिस्पर्सन फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो बनेगा सॉलिड सोल. ठीक, ये जो बना अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, जब दोनों लिक्विड हो तो यहां इमल्सन हो रहा था. तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सॉलिड सोल और इमल्सन. सिर्फ इन्हीं दो की स्टडी करनी है मैं पूरे चैप्टर में, बाकी सब तो ऐसे दिया हुआ है. तो अभी बात कर रहे हैं पहले वाले की कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन की बात किया हमने, कि दूसरी बात जो मेरी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, डिस्पर्सल फेज है और डिस्पर्सल मीडियम है. दोनों को जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है. एक कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अगर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आसानी से मिक्स हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन बन रहा है. तो फर्स्ट केस वही है मेरा लायोफिलिक का. यहाँ डिस्पर्सल फेज और मीडियम के बीच में अट्रैक्शन है. अट्रैक्शन होने की वजह से दे कैन बी मेड बाय इजीली मिक्सिंग, राइट. तो ये इजीली मिक्स करके हम इसे बना पाते हैं, लेकिन इसे हम इजीली मिक्स करके नहीं बना पाते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में, इसके डिस्पर्सल फेज और मीडियम के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं. तो जब अट्रैक्शन नहीं है तो इन्हें बनाने के लिए मैं कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग. दे आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग. सिंपल मिक्सिंग, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सल मीडियम को मिलाया, बन गया. और दे आर प्रिपेयर्ड बाय सम स्पेशल मेथड्स. स्पेशल मेथड्स, ये मेथड्स हम अभी देखेंगे कौन कौन से हैं. बट ये है कि ये सिंपल मिक्सिंग से, क्योंकि दोनों के बीच अट्रैक्शन है, मिलाया बन गया. यहाँ इन्हें मिलाने के बाद ये नहीं बनने वाला है क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है. तो इसके लिए हम अलग से मेथड यूज करते हैं. अब अट्रैक्शन होने की वजह से क्या है, ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है. और हाईली सॉल्वेटेड. सॉल्वेटेड का मतलब क्या है कि जैसे कि ये डिस्पोज्ड फेज है मेरा, तो डिस्पोज्ड फेज ऐसा डिस्पोज्ड फेज है. डिस्पोज्ड फेज को जैसे ही मैं इसके डिस्पर्सन मीडियम के अंदर रखता हूँ तो डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर ऐसे आके चिपक जाएंगे. ये डिस्पर्सन मॉलिक्यूल्स आके इस डिस्पोज्ड फेज के ऊपर अट्रैक्शन की वजह से आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे ऐसे. इसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन. ठीक है. यहाँ अगर इंस्टीड ऑफ ये जो मेरा डिस्पोज्ड मीडियम अगर ये वाटर होता तो इसे हाइड्रेशन कहते हैं. तो ये सॉल्वेशन है मेरा, राइट. सॉल्वेंट बन जाता है. ये सॉल्वेंट सॉल्यूट में डिसॉल्व हो जाता है आसानी से, जिसके हम डिस्पोज्ड फेज और मीडियम का नाम दिए हैं. तो ये हाईली सॉल्वेटेड होता है क्योंकि अट्रैक्शन होता है. यहाँ अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से सॉल्वेशन नहीं होता है. रिवर्सिबल इन नेचर क्यों है,
क्योंकि भाई दोनों मैंने क्या बोला सिंपल मिक्सिंग से बने हैं, तो चीज़ें जब सिंपल मिक्सिंग से बनती है तो उन्हें सिंपली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो आप, तो इन दोनों को सिंपली अलग कर सकते हैं। तो अलग कर देंगे, अलग करने के बाद फिर दोबारा मिलाएंगे तो फिर दोबारा ये लायोफिलिक कोलॉइड्स बना देंगे। लेकिन ये तो स्पेशल मेथड्स बने हैं, अगर इन्हें आप सेपरेट कर देंगे फिर सिंपल मिक्सिंग करना चाहेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे, तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग, इनके लिए स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं। इसे दोबारा बना दिया हमने सेपरेट करके इसलिए रिवर्सिबल है, इसे नहीं बना सकते इसलिए ये नॉट रिवर्सिबल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल, राइट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपना बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पोज्ड फेज। पहले हमने बात कर लिया स्टेट के बेसिस पे, फिर बात किया हमने उनके डिस्पोज्ड फेज और डिस्पोज्ड मीडियम के बीच के बीच में अट्रैक्शन है या नहीं है, तो लायोफोबिक और लायोफिलिक की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि इनके कोलॉइडल सॉल्व है उनके रेंज क्या है, मतलब कि उनके साइज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलॉइडल की रेंज की। कोलॉइडल रेंज कितना होता है, तो हमने डिस्कस किया था कोलॉइडल रेंज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, इस रेंज में अगर मेरा पार्टिकल को आफ्टर को मिलने के बाद डिस्पोज फेज और मीडियम, उनका साइज अगर मॉलिक्यूल्स का इसके बीच में लाई करता है तो हम इसे बोलेंगे कि ये मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन का है, ये कोलॉइडल रेंज है मेरी, ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स का साइज इसके इक्वल आ जाता है तो कोलॉइडल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये कोलॉइडल है या नहीं है। तो फर्स्ट कैटेगरी इज अवर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मल्टी मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ढेर सारे मॉलिक्यूल मिले होंगे। तो हम इसे पहले डिफाइन करते हैं। तो डिफिनेशन ये है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स और एटम ऑफ डिफरेंट फेज तो फर्स्ट अपना था मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर्स आर दोज कोलॉइड्स which are made by when molecules or atoms of disposed phase aggregate together to form species having size in colloidal range. For example, sol of sulfur molecule consists of around 1000 acid molecule. मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि मान लीजिए हमने सल्फर का एक मॉलिक्यूल लिया, तो ये मॉलिक्यूल जो है इसका साइज मेरे कोलॉइडल रेंज में नहीं आता है। जब कोलॉइडल रेंज में नहीं आता है तो कोलॉइडल सॉल्व कैसे बनेगा? फिर क्या होता है, ढेर सारे सल्फर के मॉलिक्यूल एक साथ एग्रीगेट होते हैं, और जिनकी वजह से क्या है, इनका ये जो साइज है, अब ये साइज मेरे 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के रेंज में आ जा रहा है। तो पहले जब ये सिर्फ एक था तब ये कोलॉइडल रेंज में नहीं आ रहा था, लेकिन ये ढेर सारे जब एक्यूमुलेट हो गए एक साथ तो ये मल्टी मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो अब ये मिलके जो है ये पूरा का पूरा एक बनाए जिसका रेडियस आपके या डाया आपके रेंज में आ जा रहा है। तो ये रेंज में आना, कोलॉइडल सॉल्व का बनना, इसे कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। लगभग इस एक सल्फर के मॉलिक्यूल में लगभग 1000 आपके सल्फर के एटम्स होते हैं। 1000 एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर या मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर, तो ठीक है। तो एक कोलॉइडल बनाने के लिए इसके 1000 एसिड को एक साथ एग्रीगेट होना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। नेक्स्ट इज आवर मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स तो बहुत ही सिंपल है। ये वो कोलॉइड्स होते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही
जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिला रहे हैं तो इसके कोलॉइड्स का साइज पहले से ही इतना बड़ा है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन ये बना सकते हैं। तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स आर द कोलॉइड्स इन विच द साइज ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिस्पर्स्ड फेज और साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलरेडी इन कोलॉइडल रेंज, दैट इज स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। ये सब क्या होते हैं कि ये पहले से ही कोलॉइडल रेंज में होते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि स्टार्च को जैसे आप वाटर के साथ मिक्स करते हो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देता है, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज में है। तो ये होता है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड। अगला है अपना एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो associated colloids are those colloids which behave as electrolyte at low concentration and at high concentration their particles associated together to form particles of colloidal range like soap and water। इसे समझिए आप। तो होता क्या है कि एसोसिएटेड कोलॉइड्स कैसे बनते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स में क्या होता है, पार्टिकल ये तो वैसा ही दिख रहा है जैसे कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स था। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में क्या होता था, एक छोटा सा कोलॉइड का रेंज था, कोलॉइड था, एक छोटा सा पार्टिकल था, वो कोलॉइडल रेंज में नहीं था। तो कोलॉइडल रेंज में होने के लिए क्या था, उससे सिमिलर जैसे सल्फर का था, तो सल्फर के ही ढेर सारे पार्टिकल एक साथ एग्रीगेट हुए, एक साथ एसोसिएट हुए और होने के बाद कोलॉइडल रेंज का उसने रेडियस बना लिया, जिससे कि वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स हमने उसका नाम दे दिया था। एसोसिएटेड में क्या होता है, इसे एसोसिएटेड वाले को मिसल भी कहते हैं, MICE डबल LS, ये मिसल्स है। मिसल्स वही जो सोप बबल में आपने पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा था। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स को ये मिसल कहते हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड्स कैसे बनते हैं? तो होता क्या है कि नॉर्मली आप जैसे देख लीजिए, आप प्रैक्टिकली घर पे आप इसे फील कर सकते हैं कि जब आप वाटर के अंदर एक सोप को लीजिए, उस सोप को 2-4 बार घुमा दीजिए ऐसे, तो जब सोप कम रहेगा, या डिटर्जेंट पाउडर आप ले लीजिए, घर में डिटर्जेंट पाउडर है, आपको कुछ कपड़े धोने, आपने हाफ बकेट वाटर लिया और उसके अंदर थोड़ा सा डिटर्जेंट मिलाया, थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला देने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो पहले भी इलेक्ट्रोलाइट था, अब भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव कर रहा है। बट क्या हुआ कि अगर आपने उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डिटर्जेंट पाउडर ऐड कर दिया, उसके बाद आप उसे ऐसे सेक करेंगे तो उसमें फोम जनरेट होगा, लेदर जनरेट होगा, झाग बनेगा। तो ये जो झाग बन जा रहा है, फोम बन रहा है, लेदर बन रहा है, ये कोलॉइड्स है, राइट। तो क्या हुआ कि पहले जो मेरा डिस्पर्स्ड मीडियम था वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा था। हमने डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा था, डिस्पर्स्ड फेज हमने थोड़ा बहुत यूज़ करा था, तो लो कंसंट्रेशन पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमने डिस्पर्स्ड फेज का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया उस वाटर के अंदर, ठीक है, उस सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, अब कंसंट्रेशन उसका हाई हो गया उसके अंदर। जब हाई हो गया तो जो फोम बन रहा है वो अब आपके कोलॉइडल रेंज का बन रहा है। तो ये होता है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड्स। और जो फोम बन रहा है वो मिसल है। कैसे मिसल के बारे में हम देखते हैं आगे। तो कोलॉइड्स विच बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन एंड एट हाई कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है लो कंसंट्रेशन पे, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे आते ही वो बिहेव करने लगता है लाइक, हाई कंसंट्रेशन से वो एसोसिएट हो जाता है और वो कोलॉइडल रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो इसे हम एसोसिएटेड कोलॉइड या मिसल कहते हैं। एग्जांपल आपका सोप प्लस वाटर, सोप और वाटर को आप मिलाइए, ये डिस्पोज्ड फेज है मीडियम है, आप यहाँ डिटर्जेंट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो ये बेसिकली क्या C17H35COON है, ये आपका क्या है, सोडियम या पोटेशियम का एस्टेरेट होता है। ये सोडियम एस्टेरेट है, आप पोटेशियम एसिट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सोडियम एसिट्रेट है। इस सोडियम एसिट्रेट को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनता है। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ये वाला पार्ट COO- वाला पार्ट है,
जैसे ये CO माइनस और ये प्लस, तो ये CO माइनस वाला पार्ट है, ठीक है, और ये उसके पीछे की ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है वो है। तो ये क्या हो गया, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई और ये वाला पार्ट मेरा COONA का हो गया। तो ये पोलर होता है और ये वाला पार्ट मेरा नॉन पोलर होता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर के साथ रिपेलेंट होता है, वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होता, ये वाटर से अट्रैक्ट होता है, पोलर होता है। तो इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। वही बात जो लायोफिलिक और लायोफोबिक में था, अट्रैक्शन वाली बात थी। लायो हाइड्रोफिलिक एंड या हेड कहते हैं, इसे हाइड्रोफोबिक एंड या टेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉन पोलर है, पोलर है। तो इस तरह से एसोसिएट हो। अब ये एसोसिएट कैसे होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट हमारे पास, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये एसोसिएट होते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। तो अगर एसोसिएट होने को देखा जाए तो मेरे पास जैसे कि मान लीजिए वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जैसे ही हमने इस सोडियम स्टेरेट को ऐड करा या सोप को ऐड करा, तो वो क्या होगा, उस सोप का जो पार्टिकल था, उस पार्टिकल में जो निगेटिव वाला पार्ट था, COO माइनस वाला पार्ट, COO माइनस वाला पार्ट ये है और ये इसके टेल्स हैं। तो ये वैसे ये माइनस वाला पार्ट जाके इस वाटर पे अट्रैक्ट हो जाएगा। राइट। तो पहले तो वाटर का ड्रॉपलेट इतना छोटा सा था, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऐड किया है, जैसे ही हमने ये ऐड किया कंसंट्रेशन, ये देखो आपने, जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, पहले तो वो अकेले था एस, तो ये मेरा कभी कोलाइडल सॉल्व नहीं बना सकता था। लेकिन जब ये ढेर सारे एसोसिएट हो गए वाटर के ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं कि as we increase temperature, as we increase the concentration of soap in water, then अब ये हो गया आपका रेंज इस मॉलिक्यूल का। तो यहाँ ढेर सारे आके एसोसिएट, और इसलिए एसोसिएटेड है। स्मॉल क्वांटिटी थी, अब ये इतना बड़ा सा बन गया जो कोलाइडल रेंज में आ गया। तो अब ये मेरा एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल कहलाता है। इसी को हम मिसल बोलते हैं या एसोसिएटेड कोलाइड्स, राइट। मिसल देख लिए, एसोसिएटेड कोलाइड्स देख लिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसके अंदर, वो है CMC। ठीक है। CMC क्या होता है, क्रिटिकल मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्रिटिकल मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन इज दोज कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कौन सा कंसंट्रेशन होता है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन इज अ कंसंट्रेशन अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक प्लेस। मीन्स हमने वाटर के अंदर सोप के या डिटर्जेंट के पाउडर को ऐड कर रहे हैं, वो एक टाइम आएगा जब ऐड करने के बाद लेदर जनरेट होगा और वो कोलाइडल रेंज में आएगा, तब जाकर उसे हम जिस कंसंट्रेशन पे होगा या जिसके अबव कंसंट्रेशन पे होगा, उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं मिसल CMC, ठीक है, अबव विच। तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन की तरह एक और टर्म आता है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर, इसे हम क्राफ्ट टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं TK से। यह है क्राफ्ट टेम्परेचर। तो इसे हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं जैसे कंसंट्रेशन वाले को हमने करा है कि टेम्परेचर अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक प्लेस। टेम्परेचर अबव विच formation of missiles take place।
ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के आने के बाद मिसल का फॉर्मेशन हो सकता है, इसीलिए हम इसे क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और एक कंसंट्रेशन आना, जिस कंसंट्रेशन के बाद वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होके मिसल फॉर्मेशन कर दें, जो एक कोलोइडल रेंज का हो जाए, उससे हम बोलते हैं उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्या, CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो लास्ट टॉपिक है अपना क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। कैसे सोप काम करता है, कैसे सोप आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, आपके बॉडी के ऊपर के जो डर्ट लगे होते हैं, चाहे वो ऑयल हो, ग्रीस हो या किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल हो, उसे कैसे रिमूव करता है सोप। ये क्लास 10th में भी हम पढ़े थे, बट उसका लोअर थोड़ा लेवल लो था। अब देखते हैं इस चीज़ को। जस्ट क्या होता है कि सपोज दैट कि ये मेरे कपड़ों के फैब्रिक्स के अंदर के पार्ट है, और ये फैब्रिक के ऊपर सपोज दैट कि ये लग गया है डर्ट, राइट। ये जो डर्ट लग गया है, तो ये डर्ट जो होता है, ये डर्ट होगा, इसे हम डर्ट या ग्रीस, ये डर्ट है, ग्रीस भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम इस अपने बॉडी के ऊपर वो सोप या कपड़े के ऊपर वो सोप अप्लाई करते हैं या डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं, तो सपोज दैट ये मेरा सोप मॉलिक्यूल है, तो इसका ये पार्ट है, राइट। ये वाला पार्ट मेरा हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है, वाटर लविंग है, राइट। अच्छा, अब क्या होता है कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, हियर is due to the fact that soap molecules form micelle around oil. Soap molecules form micelle around oil. अगर मेरा डर्ट ऑयल है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, सोप का मॉलिक्यूल मिसल फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा, देखिए मेरे पास ये डर्ट वाला पार्ट है। जैसे इस डर्ट वाले पार्ट को के ऊपर मैं अपना सोप अप्लाई करता हूँ, तो क्या होता है, जो मेरा नॉन पोलर पार्ट होता है वो जाके इसके ऊपर चिपक जाता है, और जो मेरा पोलर पार्ट होता है, जो निगेटिव पोलर पार्ट है मेरा, वो ऐसे ये कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है उस वक्त का, जब हम सोप अप्लाई करते हैं या डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं फैब्रिक पे या अपने बॉडी के ऊपर। तो यहाँ क्या होता है कि मिसल फॉर्मेशन होता है अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ स्टेरेट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ स्टेरेट क्या है, स्टेरेट आयन इज इन ऑयल ड्रॉपलेट। ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर हो गया, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो हो गया वो मेरा आउटसाइड की तरफ हो गया। तो ये इस तरह से एक मिसल फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो मिसल फॉर्मेशन हुआ, ये वाला ऑयल या डर्ट ग्रीस वाला पार्ट था, मिसल फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, मैंने इसके ऊपर वाटर, भाई अब वाटर से ट्रीट किया। जैसे ही वाटर इसके ऊपर आ रहा है, तो सपोज दैट ये वाटर का फ्लो आ रहा है, ठीक है, वाटर का फ्लो ऐसे ऐसे आएगा। तो जब वाटर का फ्लो आएगा, तो वाटर के अंदर, वाटर तो पोलर होता है, तो यहाँ वाटर भी मेरा पोलर है और ये वाला पार्ट भी मेरा आयनाइज्ड है। तो ये वाटर क्या करेगा, इस पोलर वाले पार्ट को पुल आउट करेगा और क्लीनिंग एक्शन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।